Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS The Extra Step. In this single video, we are going to cover all the important points related to operating system like basic concept of operating system, need for operating system, functions of operating system and commonly used operating system. This video is again very important for all the age group students, those who are a school student, those who are a college student, or those who are the professionals who are preparing for any of the competitive examination. Because in any competitive examination, you will always get one question from the basics of operating system. So let us quickly start our session. And yes, if you are new to our channel, please subscribe to our channel for all the notification and for all the update. Now, what is the term operating system? Now you can see the diagram in this PowerPoint presentation. It is an interface between user and hardware. Okay, so who is the user? I am the user. आप इस वीडियो के मीडियम के थ्रू you can watch me, you can listen me, and you can see my PPT. Okay, now what are the things that have involved in creating this video is कि मेरे पास एक लैपटॉप है. So laptop is what? That is a hardware. Okay, laptop एक hardware है. Now internet, I am using internet. So what is the internet? Internet is the network of network. इसके थ्रू हम किसी भी डेटा के थ्रू किसी भी नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, एंड आई एम द यूजर, यू आर द यूजर. तो मैं एक ऐसे यूजर हूं जो मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूं एंड यू आर द लिसनर. ओके, सो यू आर ऑल्सो द यूजर. व्हाई? Because when you will watch this video, at the end of the video you will post your doubt. So you are a user, the user which is going to give me the feedback. Okay, and now you can see my slide. तो ये slide जो आपको दिख रहा है, that is the interface between user and hardware. क्यों? मेरे पास एक पेन टैब है, इसकी मदद से whatever I am writing on my touchpad, you are able to view it. So yes, I can say in my system and in your system there is by default Windows operating system, and by the help of that Windows operating system we can view and we can communicate to each other. So that is why it is an interface between user and hardware. So when you are getting this type of question in the examination, you are supposed to write the definition as well as please elaborate the definition in your terms. Okay, now from this picture we can see this is a user. A user can also be known as a client. Okay, like मैं एक client हूँ, आप एक client हो, दूसरा एक client है. Now this is interacting with the system software and the application software. So what is system software? Basically the operating system that we are using, like Android है, iOS है जो आपकी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में आप यूज करते हो, या फिर विंडोज है, लिनक्स है, रेड हैट है जो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में या लैपटॉप में यूज करते हैं. So they all are the example of system software. Now again we have another category of application software, like I can say Tally. So Tally एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हम अकाउंटिंग में यूज करते हैं. Similarly जो भी आपका वर्ड का पैकेज है, that is OpenOffice org. So OpenOffice org is consisting of all the Word, Excel, PowerPoint. So these all are the application software which are meant specific for the application. यूजर के बीच में और ये हार्डवेयर है. हार्डवेयर क्या हो सकता है? हार्डवेयर कैन बी एनी डिवाइसेस दैट यू कैन टच, लाइक आई कैन टच माय पेन ड्राइव, आई कैन टच माय सेल फोन, आई कैन टच माय एवरीथिंग. ओके, माय सिस्टम. सो सीपीयू हो गया, आपका रैम हो गया, आपके जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में, सो दे ऑल आर हार्डवेयर. तो लाइक आई एम राइटिंग हियर combine CS. Okay, I'm writing here combine CS. So whatever content I'm writing on the touchpad, you can see it. So yes, I can say आप कैसे देख पा रहे हो, मैं कैसे लिख पा रही हूँ, because in my system there is by default operating system installed और उसकी मदद से you and me can connect to each other. Okay, so that is the basic general definition of operating system. So examination में आप इस definition को लिखेंगे और you are supposed to draw this figure and then you are supposed to elaborate the complete definition of operating system. Now let us see what is the purpose of operating system. Because एक क्लास का, एक किसी भी काम को करने का एक पर्पस होता है. मैं यहाँ पे एक कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ. क्यों? क्योंकि मेरा ये पर्पस है कि आप तक मेरी बातें समझ सके एंड आई कैन शेयर माई नॉलेज टू यू. सो पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड an environment in which a user can execute a program conveniently and efficiently. Now ये बहुत important एक क्वेश्चन भी आपको 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है कि what are the basic fundamental concept of using operating system. सिंपल सी बात है, अगर मुझे आज की डेट में कोई गाना भी अगर सुनना है अपने सेल फोन में या फिर अपने लैपटॉप पे मुझे कोई भी वीडियो को प्ले करना है, प्ले करने के लिए मेरे पास एक प्लेयर होना चाहिए,
मेरे डिवाइस में ऑडियो का कार्ड होना चाहिए, वीडियो का कार्ड होना चाहिए, then only I can operate my device. Okay, so that is known as a program. और किसी भी प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करते हो, we have only two motive of executing a program. It must be efficiently executed and it must be conveniently in use. So that is the basic purpose of having an operating system. Okay, now just now we have seen what are the major component of computer system. First is the hardware, CPU, disk, memory. आप जितना भी हार्डवेयर डिवाइस इमेजिन कर सकते हो, so they all are the hardware device which are physical entity. Okay, and which is also known as your tangible item, जिसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे आप अभी मुझे देख पा रहे हो. Okay, and now in your room you can see there is a tube light, there is a fan, there is almirah, there is a bed, so and so they all are the hardware. Now what is an operating system? It is a special program which acts as an interface between user and hardware. What is an application program? It can be a compiler, it can be utility program, it can be database, it can be game, it can be so on. आपके सुविधा के अनुसार आप किसी भी अगर एप्लीकेशन को बना पा रहे हैं, दैट इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम. जैसे हमने पढ़ा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर. सो लैंग्वेज ट्रांसलेटर विच इज यूज्ड टू ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द लो लेवल लैंग्वेज, as the same Google Translator is doing. So we have a compiler in our programming terms. यूटिलिटी प्रोग्राम लाइक आपके सिस्टम में बैकअप है, डिस्क फ्रेगमेंट आप कर सकते हो, आप क्लीनर चला सकते हो. डेटाबेस, यस वी कैन हैव लॉट्स ऑफ MySQL, MS SQL, Oracle डेटाबेस टू स्टोर द डेटा. गेम्स, अगर आप कोई गेम खेलते हो अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके, सो दे आर ऑल्सो एन एप्लीकेशन program. And who is the user? People who are using the computer, that is known as a user. So this is the major component of a computer system. Now let us quickly see what are the services to the users which can be given by the operating system. Operating system किस तरीके का services provide करता है यूजर को? The first important point is program execution. अगर मैं अभी वीडियो बना पा रही हूँ, आप देख पा रहे हो, so this is my PPT. So this PPT I can move to back, I can move to next, so that is the program execution. Similarly, when you used to play a game on our computer system, या आप कोई वीडियो प्ले करते हो, तो दैट इज अगेन अ प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है. सो दैट इज व्हाई इट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम which is executing the program. So it is operating system is responsible for the execution of all type of program, whether it be user program or the system program. जितने भी प्रोग्राम आप अपने सिस्टम पे रन करते हो, आप कोई एक ऐप ओपन करो, लाइक अगर आप कैमरा ओपन कर रहे हो, कैमरा से अगर आप किसी का पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, या फिर आप वीडियो बना रहे हो, या फिर आप एक यूट्यूब का ट्यूटोरियल वॉच कर रहे हो, सो दे ऑल आर नोन एज इंडिविजुअल प्रोग्राम. और उसको जब आप रन करते हो, दैट इज नोन एज द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. Second important point is handling input output operation. Now as you can see, this is my pen tag. इस pen tag को मैंने केबल की मदद से अपने लैपटॉप में कनेक्ट किया है. Now I have the charger connected, I have the mouse connected in my device, I am connecting my pen drive. So इस तरीके के peripheral devices को when we are connecting, again operating system is responsible for controlling all the operations. Next important point is manipulation of file system. So what is a file system? Like मैं एक CD लगाऊंगी, मैं एक DVD लगाऊंगी, एक हार्ड डिस्क लगाऊंगी, वहां से मैं किसी फाइल को कॉपी पेस्ट करूंगी अपने सिस्टम में, and then I will use to play that file in my system. So that is again known as files. Okay, हर एक डेटा को ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म्स में हम बोलेंगे फाइल. और आपको मैंने पढ़ाया डेटा क्या है, डेटा आर द रॉ फैक्ट्स. तो अगर हम डेटाबेस की बात करेंगे, so there is the concept of data, that is a single record. और अगर उसी चीज को आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हो, that is known as file management system. Okay, now the fourth important services is error detection and handling. Now let us take an example कि मैं अभी PPT बना रही हूँ, मेरे से next बटन प्रेस नहीं हो रहा है, या फिर मैं बैक नहीं जा पा रही हूँ, या फिर अगर मैं कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रही हूँ, that is not able to play. So that is the error detection and handling. Okay, next is the resource utilization allocation. So what is the resource allocation? Now at a time I am running my internet, I am using my pen tab, and I am using this PPT, और साथ में मैं अपनी ऑडियो और वीडियो को यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ. सो दिस ऑल आर द रिसोर्सेज फॉर मी. और इन सारी रिसोर्स को मैंने क्या किया, एक कॉमन वीडियो में कंसिस्टिंग ऑल द थिंग्स इन वन वीडियो, सबको मैंने कंबाइन कर दिया एक वीडियो में. सो दैट इज अ रिसोर्स एलोकेशन. इन अनदर वर्ड, इस तरीके से आप समझ लो कि आप एक क्यू में खड़े हो, ठीक है, ये मूवी का विंडो टिकट है, दिस इज अ विंडो टिकट फॉर मूवी. आप एक क्यू में इस तरीके से खड़े हैं,
ठीक है। तो आप जब मूवीज का जब वो विंडो ओपन होगा तो जो फर्स्ट पर्सन है उसको टिकट मिल जाएगी, वो यहाँ से चला जाएगा, सेकंड पर्सन आएगा उसको टिकट मिलेगी, वो यहाँ से चला जाएगा। तो एट अ पर्टिकुलर टाइम वी आर गिविंग द सिस्टम टू अ पर्टिकुलर यूजर। किस पॉइंट ऑफ टाइम में किसको आप सिस्टम में अलाउ कर रहे हो। सिंपल एग्जांपल इज एटीएम मशीन। एटीएम मशीन में एट अ टाइम 2 पर्सन को हम अलाउ करते हैं इन द इन्विजिलेशन ऑफ दैट सिक्योरिटी गार्ड। ओके, तो एक बंदा गया, वो अपने कार्ड को स्वाइप किया, पैसा वहां से रिट्रीव किया, तो दैट इज अ रिसोर्स। इसी तरीके से जब आप अपने सिस्टम में किसी भी एप्लीकेशन को रन करते हो, कितने टाइम तक वो रिसोर्स एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट इज द रिसोर्स एलोकेशन व्हिच इज अगेन हैंडल्ड बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन, अगेन अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करना इज अगेन किसका जॉब है, वो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जॉब है। इट इज अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द मशीन इन द मोस्ट प्रोटेक्टेड वे। तो ये आपका 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक हमने कवर कर लिया। The first important topic is basics of operating system and what is the purpose, and the final is what are the functions of operating system. Okay, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको कोई भी डाउट होता है, यू आर फ्रीली टू ड्रॉप एनी टाइप ऑफ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नीड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों जरूरत पड़ी। आप सोचो कि अगर आज की डेट में वी आर यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक सेल फोन, बिना सेल फोन का नाउ वी कैन नॉट इमेजिन एनीथिंग। एक छोटा से छोटे बंदे के भी पास आज की डेट में ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी सेल फोन है, और सेल फोन की मदद से ही और शी इज एबल टू डू एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। तो व्हाट इज द नीड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। कन्वीनियंस, किसी भी टास्क को बहुत ही इजी वे में, सिंपल वे में करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। एफिशिएंसी, आप किसी भी रिसोर्सेज को अगर यूज करना चाहते हो, कितने इफेक्टिवली आप यूज कर रहे हो। जैसे आपने पढ़ लिया, लेट अस टेक एन एग्जांपल, आपका मैथ्स का एग्जामिनेशन था, आपने प्रॉपर सिलेबस कवर किया है, बट एग्जामिनेशन में एक ही ऐसा बंदा होगा जो पूरे क्लास में फर्स्ट आएगा, सारे बच्चे तो फर्स्ट नहीं आएंगे। तो इसका ये मीनिंग निकलता है कि पढ़ा तो सबने है, बट हु इज द एफिशिएंट पर्सन इन द एंटायर क्लास। ओके, ability to evolve. Now we all know कि we have lots of versions of cell phone, we have lots of versions of operating system. कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके वर्जन्स रिलीज होते हैं, जिसमें हम कुछ नया नया ऐड करते हैं, like the WhatsApp. Okay, WhatsApp is again one of the application. एक ऐप है, एप्लीकेशन है, जहाँ पे डे बाय डे कुछ ना कुछ फीचर्स आपके ऐड हो रहे हैं। So an operating system must have the ability to evolve. Okay, थ्रूपुट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज थ्रूपुट। थ्रूपुट का क्या मतलब आप समझते हो। अगर आपने ये कॉन्फिडेंटली बोला कि मैंने ये सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया है ना, जब आपका एग्जामिनेशन होता है, जब आपकी रिपोर्ट कार्ड हमें मिलती है, एट द टाइम ऑफ रिपोर्ट कार्ड वी आर गोइंग टू एनालाइज क्योंकि इस बच्चे का दिस इज द रिपोर्ट। ओके, सो दैट इज नंबर ऑफ जितना भी आपने टास्क परफॉर्म किया है, कितने टाइम में परफॉर्म किया है। जैसे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हर बंदा एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करता है। 2 घंटे का अगर पेपर है, 2 घंटे में कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे टाइम बहुत मैटर करता है कि आप किस टाइम पे कितने इफेक्टिवली किसी भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक नीड फॉर हैविंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड. It can be a simple question in your examination. What are the functions of an operating system? अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ लिया तो अब उसके फंक्शंस क्या हो सकते हैं। फंक्शंस का अब आप इमेजिन करिए, हर एक काम जो आप अपने सेलफोन के थ्रू कर रहे हैं, या फिर आप अपने लैपटॉप के थ्रू कर रहे हो, या फिर अगर आप अपने पीसी के थ्रू कर रहे हैं, सो दे ऑल आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट, हर एक टास्क को जब आप करते, जैसे मैं ये पीपीटी बना रही थी, दैट इज वन ऑफ द टास्क। अगर मैं कोई वीडियो प्ले करूंगी, दैट इज अनदर टास्क। मेमोरी को मैनेज करना, लाइक हम बोलते हैं ना कि माय सिस्टम इज ऑफ 1 टेराबाइट, 1 गीगाबाइट, 1 किलोबाइट। तो अगर वो सिस्टम फुल हो गया, देन वी आर परचेजिंग द एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, तो दैट इज अ मेमोरी मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट, ईच एंड एवरी डेटा इज नोन एज फाइल। तो हर फाइल को आप प्रॉपर्ली मैनेज करते हो। लाइक अगर मैंने डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाया है मूवीज का, now what I will do, all the movies I am going to store in that folder, so that is a file management system. Similarly device management, आप जितने भी internal and external devices अपने system पे connect कर रहे हैं, ये operating system की responsibility होती है कि हर device को properly manage करें।
Another is security. Yes, so we are having the utility programs like antivirus in our system. वो भी अपना टास्क करता रहता है, वो बैकग्राउंड में रन होता रहेगा, और कोई भी अगर उसको वायरस दिखेगा देन इट विल ब्लॉक दैट पर्टिकुलर साइट. आप देखते हो ना कभी कभी जब आप किसी पिक्चर को या किसी मूवीज को डाउनलोड करते हो तो वहां पे एक मैसेज लिख कर आता है, दिस साइट इज अनसेफ. ओके अगर आप उसको डाउनलोड कर रहे हैं तो आप अपने रिस्क में डाउनलोड करेंगे. तो दैट इज अ सिक्योरिटी फीचर दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोवाइडिंग टू यू. जॉब अकाउंटिंग का मतलब है प्रॉपर किसी भी टास्क को शेड्यूल करना कि इस टाइम पे मेरा ये टास्क शेड्यूल होने वाला है, इस टाइम पे मेरा ये टास्क परफॉर्म होने वाला है. अनदर थिंग इज सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट. यस, अगर मैंने कोई हार्ड डिस्क यहाँ पे लगाया या कोई मैंने पेन ड्राइव यहाँ पे लगाया और अगर वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, ये टास्क भी कौन हैंडल करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम. प्रोसेस मैनेजमेंट यहाँ पे रिपीट हो गया है. नेटवर्किंग अगेन we are connecting through the cable, we are connecting to the Wi-Fi, we are connecting to the Bluetooth. So this all are done by the help of operating system. And the final thing is coordination between the users and the software and as the hardware. So there are some of the basic operations or basic functions performed by an operating system. Now again this slide is very important slide. What are the types of operating system? क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, आपने आई गेस सिर्फ ये आप जानते हो कि विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 8 है, लिनक्स है, फेडोरा है, एंड्रॉइड है, मैक ओएस है, यूबंटू है. Okay, so these are some of the pictures of operating system and that is written here कि विंडोज में क्या होगा आपका, जेएनयू में क्या होगा, मैकओएस में क्या होगा, आईओएस में क्या होगा. So these are the examples of operating system. तो कभी भी जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन लिख रहे हो, यू आर ऑल्सो सपोज टू राइट द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ कितने तरह के क्या आप ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हो? अगर मैंने कहा कि विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का है? क्या वो सिंगल यूजर है, मल्टी प्रोग्राम है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो एंड सो. सिंगल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि जब आपका रॉकेट लॉन्च होता है ना, जब आपका रॉकेट लॉन्च होता है तो रॉकेट लॉन्च, यस वी ऑल नो कि दैट इज अ रियल एनवायरनमेंट. वहां पे एक एक मिली सेकेंड का बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है, किस सेकेंड पे कितने टाइम पे आपको रॉकेट लॉन्च करना है. सो दैट टाइप ऑफ प्रोग्राम और दैट टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन डन इन द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पे उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए देयर मस्ट बी अ फिक्स्ड डेडलाइन. अगर मैंने बोला 12:01 पे आपका रॉकेट लॉन्च होना है तो उसी टाइम पे वो रॉकेट लॉन्च किया जाता है, वहां पे कोई भी डिले होने के चांसेस नहीं होते हैं. ओके, सिमिलरली एक दूसरा हम देख लेते हैं एग्जांपल. जैसे मुझे पता है कि मेरा ट्रेन है और ट्रेन की टाइमिंग 9 AM पे है, तो कभी कभी क्या होता है 9 AM की जगह आपकी ट्रेन 9:05 पे शुरू हो जाए, जैसे लोकल ट्रेन है, समथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पे जब आपका थोड़ा सा डिले होता है ना, आप उसको अवॉइड कर सकते हो. बट कई सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा भी स्मॉल डिले इज ऑल्सो नॉट अलाउड. सो दैट इज नोन एज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या मीनिंग है? जैसे अभी मैं ये क्लास ले रही हूँ, मेरे पास एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप पे सिर्फ मैं काम कर रही हूँ. वन लैपटॉप, दैट इज ऑल्सो नोन एज वन प्रोसेसर. ओके, एक प्रोसेसर है और एक बंदा काम कर रहा है. दूसरा क्या हो सकता है, एक प्रोसेसर है और वहां पे मल्टीपल यूजर काम कर रहे हैं. जैसे मेरा लैपटॉप है, यहाँ पे मैंने किसी और को भी दे दिया और हम कंटेक्स्ट स्विच कर रहे हैं आपस में, वो भी कुछ काम कर रहा है, मैं भी कुछ काम कर रही हूँ, एंड देन वी आर रनिंग द मल्टीपल प्रोग्राम्स. जैसे अभी मैं ये जब क्लास ले रही हूँ, आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ. आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन टू यू. बैकग्राउंड में मेरा यूट्यूब चैनल ओपन है, मेरा अनदर सोशल मीडिया अकाउंट ओपन है, मेरा जीमेल ओपन है, सो मेरे कई सारे वेबसाइट्स यहाँ पे ओपन है. सो दैट इज द मल्टीपल प्रोग्राम रनिंग ऑन वन प्रोसेसर. तो आपको इन सब का डिफरेंस मालूम होना चाहिए. सिंगल यूजर का मतलब है एक प्रोसेसर, एक यूजर. मल्टी प्रोग्राम एज द नेम इटसेल्फ से एक प्रोसेसर और मल्टीपल यूजर. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम पहले यूज करते थे, जहाँ पे सीक्वेंस ऑफ जॉब होते थे जो एक टाइम पे हम एग्जीक्यूट करते हैं. जैसे मैंने बोला ये पांच लोग हैं, ये 5 लोग एक टाइम पे काम करेंगे. जब इनका काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये 3 काम करेंगे, फिर ये 2 काम करेंगे. तो एक का जो आउटपुट है वो दूसरे के इनपुट के लिए काम करेगा और वो बैच में एग्जीक्यूट करेंगे, विच इज ऑल्सो नोन एज पूलिंग मैकेनिज्म. इसको हम बोलते हैं पूलिंग मैकेनिज्म. ओके, नाउ अनदर इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. टाइम शेयरिंग का मतलब है प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, दैट इज टाइम. ओके, जैसे मैंने बोला कि ये मेरा घर है, इस घर में आज अगर मैंने आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि यू कैन एंटर इनटू माय स्टूडियो. ओके, तो मैं 2 मिनट का समय दे रही हूँ हर बंदे को कि आप आइए मेरे स्टूडियो में आइए, यू कैन वॉच इट.
तो ये 2 मिनट क्या किया मैंने, हर एक पर्सन को, पर्सन 2 को, पर्सन 3 को ये टाइम दिया है कि इस टाइम पे आप उस एरिया को, उस रिसोर्स को यूज कर सकते हो। दैट इज नोन एज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिमिलरली वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, अगर हमारा नेटवर्क का दायरा बहुत लंबा है, व्हेन वी आर यूजिंग लॉट्स ऑफ सिस्टम्स, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं और वो अलग अलग लोकेशन पे आपका सिचुएटेड है, देन वी आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर, नाम से क्लियर है, यहाँ पे आपके मेनी क्या हो गए, मेनी प्रोसेसर। जैसे सुपर कंप्यूटर्स में वी आर यूजिंग मेनी प्रोसेसर। ओके, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज जस्ट सिमिलर टू द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड फाइनली वी हैव रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम which is mean to fix the deadline. तो यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट है, सिंगल यूजर, मल्टीपल प्रोग्राम, बैच, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट होता है, मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को एक बार दोबारा जरूर सुन लीजिएगा, और स्टिल अगर कोई डाउट होता है, यू आर फ्री टू पोस्ट योर कमेंट्स। ओके, सो ये स्लाइड हमने कवर कर लिया है। नाउ अगर आप किसी भी स्कूल का बुक देखेंगे, स्कूल की बुक में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा है रिलेटेड टू व्हाट इज WIMP। लाइक दिस, ये हमारे सिस्टम का होम स्क्रीन है ना, दिस इज आवर होम स्क्रीन। लगभग सबके ऐसे ही होते हैं होम स्क्रीन, विच इज ऑल्सो नोन एज योर डेस्कटॉप। तो ये विंडोज का सिंबल है, यहाँ पे आप सर्च बार है, यहाँ पे कुछ भी आप टाइप करते हो एंड यू विल गेट दैट प्रोग्राम। इस तरीके से हमारा एक पॉपअप मेन्यू ओपन होता है जहां से आप कोई भी प्रोग्राम को रन कर सकते हो। सो दिस इज बेसिकली नोन एज GUI। एंड द लर्नर्स, दोज हु आर वाचिंग द वीडियो, ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है कि आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज राइट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI, बिकॉज ये मैंने आपको पढ़ाया है, इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। ओके, नाउ WIMP का ये मीनिंग है, W stands for Windows, I stands for icon, M stands for menus and P stands for pointer। अब देखो यहाँ पे ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिस इज द आइकन फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप अपने डेस्कटॉप को देखते हो, यहाँ पे कुछ आइकन्स बने होते हैं, सो दैट इज द आइकन्स। मेन्यूज का ये मीनिंग है कि जैसे आपने ये पॉपअप खोला तो यहाँ पे आप जाओगे तो ऑल प्रोग्राम्स आएगा, ऑल प्रोग्राम्स के अंदर इस तरीके से ट्रायंगल बना होता है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी आपको मेन्यू ऑप्शंस दिखेंगे। पॉइंटर्स का, जैसे ये माउस है, इस माउस को मैं यहाँ से यहाँ लोकेट कर रही हूँ, सो दैट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। व्हाट इज दैट पॉइंटर? Pointer is a pointing device. So basically these are the features of WIMP environment, which is actually known as GUI। GUI का फुल फॉर्म नहीं मैं बताऊंगी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड दिस इज द नॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम। इसको आप स्टार्ट बटन बोलते हो, इसको आप सर्च बार बॉक्स बोलते हो, ये आपका इंटरनेट का क्विक लॉन्च का आइकन है, ये आपका टास्क बार होता है, ये आपके नोटिफिकेशन सेंटर होते हैं, ये आपका MS ऑफिस का पैकेज है, ये विंडोज 10 का एप्लीकेशन है, ये डेस्कटॉप आप इसको बोलेंगे। एंड दीज आर नोन एज योर आइकन। और ये जो आपको पॉपअप मेन्यू दिख रहा है, अभी जस्ट मैंने बताया आपको विंडोज मेन्यू, तो क्या आपको WIMP का मीनिंग समझ में आया? सो दिस इज द विंडोज, this is the windows, this is the icon, this is the your menu option, and that is known as the pointer। okay, so this is known as GUI। now अभी हमने क्या कवर कर लिया? हमने कवर कर लिया ऑपरेटिंग सिस्टम कि what is the purpose of using operating system, or we can say what is the need, and then we have seen some of the examples of operating system, and finally we have seen types of operating system and what are the functions of operating system। तो अगर आपको 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, यस यू आर सपोज टू राइट द 5 डिफरेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बेसिक्स को आप समझिए, और ये जो टाइप्स है, टाइप से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने मुझे सुना है और समझा है इस वीडियो को, तो आपको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर प्रोवाइड करना है। जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में पेन उठाइए और टाइप करना शुरू करिए। सो व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इट इज इन हार्डवेयर, इट इज इन सॉफ्टवेयर, या आप उसको बोथ बोलोगे या फिर नॉन ऑफ द एबव। सो आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एक मैं हिंट दे देती हूँ, हमने पढ़ा है ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। So what will be the answer? The correct answer will be software। ये हार्डवेयर नहीं है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को टच नहीं कर सकते हो, वो आपके मदरबोर्ड में ऑलरेडी इंस्टॉल होके आपको मिलता है ना। सेकंड क्वेश्चन, टास्क कैरीड आउट बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकता है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ट्रांसफरिंग डेटा टू अ प्रिंटर। जैसे मैंने ये PPT बनाया, मैं चाहूँ तो इसका प्रिंट ले सकती हूँ। तो क्या अगर मैं प्रिंटर को ये कमांड प्रोवाइड कर रही हूँ कि टू प्रिंट दिस PPT,
तो वो टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा, मैनेजिंग सिस्टम के रिसोर्सेज या फिर रिपेयरिंग एंड डैमेज डिस्क ड्राइव। नाउ मेरे में फ्लॉपी डिस्क है या मेरे में सीडी ड्राइव है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है करना? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 1 2 2 3 और 1 3। इस टाइप के क्वेश्चन आप अपने एग्जामिनेशन में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2। सिस्टम के हार्डवेयर को सही करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं होता है, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंटरप्ट को हैंडल करेगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर विल बी 1 and 2. I hope it is clear to everyone. Moving to the next important question. Which of the type of OS reads and reacts in terms of actual time? कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक्चुअल टाइम में आपका रन करेगा, है ना? सो टाइम शेयरिंग, रियल टाइम और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सो करेक्ट आंसर विल बी रियल टाइम। अभी मैंने आपको बताया किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में या किसी भी कॉन्सेप्ट में जब डेडलाइन की बात होगी कि आपको इसी टाइम पे वो टास्क को कंप्लीट करना है, देन दैट टाइप ऑफ ओएस इज नोन एज रियल टाइम ओएस। नाउ वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज, आपको मैंने पढ़ाया है कंप्यूटर सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज मेमोरी विच इज आल्सो नोन एज स्टोरेज एरिया। जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन में हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, तो आपका जो मेमोरी है वो दो तरीके का होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही आप मेन मेमोरी बोलते हो और सेकेंडरी मेमोरी को आप एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हो। इट इज आल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी। तो जो मेन मेमोरी है वो कैसा है, वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है? क्योंकि आपने तो सिर्फ रटा है, जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है आपने क्या पढ़ा है कि रैम एंड रोम, जिसमें अगेन मैं आपको हिंट देती हूँ, रैम को आपको मैंने पढ़ाया है वोलेटाइल, है ना, और रोम को मैंने पढ़ा है नॉन वोलेटाइल। और कैसे समझाया है? रोम दैट इज रीड ओनली मेमोरी, बिकॉज इट इज रीड ओनली मेमोरी सो यू आर नॉट सपोज टू एडिट द चेंजेस, सो दैट इज व्हाई इट इज परमानेंट इन नेचर। तो अगर ये परमानेंट इन नेचर है तो कभी भी पावर अगर ऑफ होगा तो ऑल द डेटा विल मस्ट बी स्टोर्ड। अब आप देखो, अगर ये मेन मेमोरी है तो यहाँ पे रैम भी आएगा और रोम भी आओगे, और मैंने यहाँ पे थर्ड ऑप्शन तो दिया नहीं है, बोथ 1 and 2। तो क्या होगा आंसर? तो डियर स्टूडेंट, हम मान के चलते हैं कि मेन मेमोरी हमारा वोलेटाइल मेमोरी है, जहां पे अगर पावर शटडाउन होगा तो जो हमारा डेटा है, डेटा विल बी लॉस्ट। ओके, सो दैट इज अ वोलेटाइल इन नेचर। तो अगर आपको मेन मेमोरी पूछेगा तो वो वोलेटाइल इन नेचर है, और अगर सिंपली हम यहाँ पे रोम की बात करेंगे दैट इज वोलेटाइल, सॉरी रैम इज वोलेटाइल एंड रोम इज अ नॉन वोलेटाइल। तो इस तरीके से क्वेश्चन ड्राफ्ट किए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल द लर्नर्स दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो। तो प्लीज एक लाइक कमेंट जरूर आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपका जो भी फीडबैक है, इफ यू वांट समथिंग मोर टू बी एडेड, सम मोर कॉन्सेप्ट टू बी एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, तो दैट आल्सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है? लिनक्स होता है, डॉस होता है, विंडोज होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओरेकल। ओरेकल इज बेसिकली अ डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। So that was the complete tutorial about the basics of operating system. Now the learners who are watching the video, so you can get this type of question in the examination. What is an operating system? What are its function? What purpose does the operating system serve to the computer and the user? Okay, that is the purpose. You can also explain what is GUI. ये मैंने assignment भी आपको दिया है to write the full form. Okay, please write down in the comment section. कमांड लाइन क्या होता है और WIMP क्या होता है? What is multitasking? What is multi-user? What is the difference between multi-programming and multitasking? What is the difference between multi-programming and multiple processing? What is real-time operating system? Or what is the role of operating system in terms of user interface, memory management, and peripheral management? So that can be a small question which are expected in your examination in your school as well as अगर आप किसी भी कॉलेज के या डिप्लोमा के स्टूडेंट है तो आपके सेमेस्टर में भी इस टाइप के शॉर्ट आंसर्स आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखने का। तो आप इस स्लाइड को टेलीग्राम से ज्वाइन होके रखिए। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल एंड दिस इज माय ग्रुप। इस ग्रुप पे आपको इसका फ्री PDF मिल जाएगा, तो यू कैन डाउनलोड द फ्री PDF एंड यू कैन मेक योर ओन नोट्स एंड दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। So this is my social media. Please follow us on the social media, and yes,
That is all about today's session. I hope you have got an overview of what is an operating system. अब आपको क्या करना है, इसको सुनना है. अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो बी बेनिफिटेड बाय दिस ट्यूटोरियल. एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि दिस topic is difficult in the subject computers, either it can be from any class, it can be from any school, it can be from any college, it can be from any subject from computers, so you can drop us message in the comment section. Thank you everyone for watching us. Stay subscribed for more updates and let's wait for another tutorial. Thank you so much.